With just one day to go before polls open for the Phase 1 of voting in the Bihar Assembly Elections 2025, the electoral battle is reaching a fever pitch in the constituency of Tarapur, where the NDA has fielded a true heavyweight in Deputy Chief Minister Samrat Chaudhary. Tarapur Assembly constituency is one of the 243 Vidhan Sabha constituencies of Bihar. Located in the Munger district and a part of the Jamui Lok Sabha constituency, it has an electoral history tracing all the way back to 1952. 83% of the population of Tarapur is rural, with the remaining 17% falling in the urban category. According to the previous census, it has 12.1% SC population, and the ST population is nearly negligible at 2%. 83.33% of the population is Hindu and 16.19% of the population is of Muslim faith, while the remaining are of other religious beliefs. According to the Special Intensive Revision Exercise data, Tarapur has a total projected population of 5.66 lakhs, of which 3.38 lakh qualify to vote in this election. In the 2020 Assembly elections, Tarapur saw a voter turnout of 51.65%. Tarapur derives its name from the historic Tareshwar Nath Mahadev temple, a revered Shiva shrine locally known as Ulta Nath Mahadev. The town comes alive during the Shravani Mela, which is a month-long pilgrimage where the devotees carry the water of the holy Ganga from Sultanganj to Diogar, passing through its vibrant streets. Samrat Chaudhary, currently serving as the Deputy Chief Minister and Finance Minister in the government of Bihar, has handled many portfolios over his long political career. Today, one of the tallest leaders of the BJP in Bihar, he began his political innings as a member of the RJD, born to a family of politicians, with his parents Shakuni Chaudhary and Parvati Devi both having served terms as members of Bihar's Legislative Assembly. Samrat Chaudhary has served 2 terms as an MLA from Parbata and is currently serving his second stint as the member of Bihar's Legislative Council. The battle in Tarapur is said to be an interesting one for a variety of reasons. For one, it marks Samrat Chaudhary's return to his home territory. He is the son of 2 former MLAs of Tarapur and still resides in the village, as evidenced by his election affidavits. Moreover, Tarapur has been a Janata Dal United bastion for the last 15 years, and his father and mother combined won this seat 6 times before that. All signs point to a whitewash in Samrat Chaudhary's favour. However, the influence of new entrants like the Jan Shakti Janata Dal and the Jan Swaraj Party cannot be underestimated. The last election held in Tarapur was the 2021 by-poll, where Rajiv Kumar Singh of the JDU edged out Arun Kumar Saha of the RJD by a slim margin of 3,852 votes. In this episode of the Road Stop, Team News X heads to Tarapur to understand the masses' mood ahead of the election battle. नमस्कार, मेरा नाम शैलेंद्र है। वोट यात्रा में आपका स्वागत है। हम इस समय तारापुर में हैं। सबसे हॉट सीट बिहार की कोई है वो तारापुर है, क्योंकि यहाँ से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि उन्होंने अपने जो विरोधी प्रत्याशी यानी वीआईपी के पार्टी के प्रत्याशी हैं उनको अपने में शामिल कर लिया, यानी कि वो बीजेपी में शामिल हो गए। लेकिन बाद में अरुण साह को समर्थन देकर जो महागठबंधन है उसने नई रणनीति बनाई है। वो रणनीति कितना काम आएगी, इस पर चर्चा करेंगे और साथ ही चर्चा ये करेंगे कि आज किस तरह का चुनाव प्रचार रहता है, किस तरह का दिन रहता है डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का। हम उनके साथ भी चलेंगे और उनसे बात भी करेंगे और ये दिखाएंगे कि आखिर तारापुर का तापमान क्या है। Tarapur is hosting a star campaigner today, none other than Chief Minister Nitish Kumar himself, in town to canvass for his Deputy Chief Minister. The pair addressed a massive gathering in town. पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी, जो थी उनका बुरा हाल था। अब बिजली बहुत कम जगह थी, ये पुरानी सरकार का हालत था। और तब हम लोग आए तो हम लोगों ने सब काम को ठीक करना शुरू कर दिया। शुरू से ही बिहार के विकास का काम हो रहा है। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है।
राज्य में प्रेम भाईचारा एवं शांति का माहौल है। आज देखिए 3 दिनों से 4 दिन से लगातार बारिश हो रहा था। आज जैसे ही खड़गपुर मुख्यमंत्री जी आए, भगवान सूर्य भी आपके सामने आ गए साथियों। इसलिए मैं तो सिर्फ आग्रह करूंगा, प्रत्याशी हूं और तारापुर का खड़गपुर का बेटा हूं साथियों। मैं तो आग्रह करने आया कि आप एक वोट 6 तारीख को कमल छाप के निशान पर वोट देने का काम कीजिए, यही आग्रह करने आया। और आपके जो अधूरे सपने नीतीश कुमार जी ने लंबे समय से बिहार को सड़कों का जाल बिछाने का काम किया। As the campaign reaches its final crescendo, we got the opportunity to catch up with the man of the moment himself. सम्राट चौधरी जी अब चुनाव प्रचार के लिए निकल गए हैं और देखिए सबसे मिलने के बाद सर निकल रहे, कितना हेक्टिक दिन रहने वाला है आज का? नहीं, रोज का दिन है और बिहार में भी प्रचार करना है और पार्टी ने यहाँ विधायक का चुनाव लड़ने के लिए भी दायित्व दिया। यहाँ भी मैं क्षेत्र में आता हूँ, लोगों से मिलता हूँ और लोगों से आग्रह कर रहा हूँ कि जन्मभूमि पर चुनाव लड़ रहा हूँ, सब लोगों का विशेष आशीर्वाद मिले। विशेष आशीर्वाद की बात आप कर रहे हैं, आज सीएम साहब की भी सभा होने वाली है, किस तरह की? नहीं, सीएम साहब आ रहे हैं, सबसे बड़े नेता हैं बिहार के और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है, जनता को भरोसा है कि आगे भी एनडीए लगातार काम करते रहे। यहाँ के लोगों से बात हुई, वो कह रहे हैं कि जब से आप आए हैं, डिप्टी सीएम बने, तब से चीजें बदलने लगी। आखिर क्या क्या चीज है अपने क्षेत्र को लेकर जो आपने? बिहार के विकास के लिए एनडीए की सरकार लगातार काम कर रही है। क्षेत्र कोई हो, सभी क्षेत्रों में लगातार विशेष तौर पर काम किया जा रहा है। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल, पूरे राज्य का दौरा करना पड़ रहा है और पूरे राज्य में आप जा रहे हैं, कितना मतलब वो लगता है कि दौरा भी करना, अपना चुनाव भी लड़ना? नहीं, ये तो एक जनप्रतिनिधि के लिए गौरव का समय है कि सबको काम करना पड़ेगा, जनता के बीच में जाना ही पड़ेगा और ये लोकतंत्र है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी चुनाव लड़ते हैं, हमको भी लड़ना है तो ये साफ तौर पर करें। सर, एक घोषणा पत्र जारी हुआ और उसमें ये कहा गया कि जो मनोज झा हैं वो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव के जो मतलब उसकी अधूरी कॉपी है एनडीए का। देखिए, एक चीज समझिए, एक तरफ बोलने वाले लोग हैं, घोषणा करने वाले लोग हैं, एनडीए के लोगों ने डिलीवर किया है, जनता के बीच में घोषणा नहीं है। हम गांव-गांव काम करके पहुंचा चुके हैं। बिहार की जनता को भरोसा है कि बिहार में विकास एनडीए ही कर सकता है। लालू जी को 15 साल मौका मिला है, बिहार के लोग जानते हैं। To understand the key issues on which the election battle would be contested, we spoke with the people of Tarapur about the upcoming poll battle. तारापुर नगर पंचायत है और बंसीपुर का एक गांव है यहाँ पर और यहीं से कुछ लोग हैं, हम इनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिर यहाँ का। ये बताइए भैया, क्या अभी चुनाव का आ गया, क्या माहौल है यहाँ का? यहाँ का बढ़िया माहौल है। ठीक है? हाँ, ठीक है। अच्छा, तो क्या यहाँ से तो डिप्टी सीएम लड़ रहे हैं? हाँ, तो उन्हीं को वोट देंगे कमल छाप पे। बस? अच्छा, क्या है आपका? यहाँ कमल छाप पर वोट देंगे। बस कमल छाप ही यहाँ, बाकी कुछ नहीं है। कुछ नहीं है यहाँ, कमल छाप ही जीतेंगे। अच्छा, तो कोई वजह है कि? वजह 15 साल से यहाँ लड़ रहा था, उसका बाप बेटा खड़ा हुआ तो वही लड़ेंगे, वही जीतेंगे। अच्छा, वही जीतेंगे। अच्छा, ऐसा आपको लगता है कि बस कमल छाप यानी सम्राट चौधरी जी? सम्राट चौधरी आगे हैं। आगे हैं? अच्छा, सामने वाले प्रत्याशी बैठ गए थे? नहीं बैठे तो नहीं, वो भी लड़ रहे हैं। नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन दूसरे को समर्थन देना पड़ा ना। वीआईपी जो प्रत्याशी थे तो बैठ गए थे। वो तो बैठ गए। अच्छा, टिकट बेचारा नहीं मिलेगा तो क्या करेगा? मुकेश सहनी इसको टिकट नहीं दिया। टिकट मुकेश सहनी तो देना चाह रहा था, बट तेजस्वी यादव जो है वो तो पैसा लेके टिकट बेचने का उसका तो आदत है। अच्छा। वो तो 4 करोड़ 5 करोड़ में टिकट बेचता है, तो इसको टिकट कैसे देगा? अच्छा। इसका जो अपना आदमी है, जो उसका कार्यकर्ता है, 20 साल से काम कर रहा है, अरुण साहब, उसको टिकट देगा। सकलदेव भी तो 2 साल से काम कर रहा है, राजनीतिक में उतरा है, तो उसको टिकट कैसे दे देगा? आप कोई भी काम करने के लिए, हम अभी 2 साल में उतरे ही हैं फील्ड में, और जो 20 साल से कर रहा है काम। 20 साल वाले को नहीं दिया, 2 साल वाले को दे दिया? नहीं, 20 साल वाले को दिया, 2 साल वाले को नहीं दिया। 2 साल वाले को नहीं दिया। नहीं दिया। अच्छा, तो वही बोल रहा है ये लोग कि मतलब हमको कुछ नहीं मिला है। मतलब गांव घर में ये लाली रोड
कहीं कुछ नहीं बना हुआ, ना किसी को घर द्वार में कहीं कुछ नहीं बना हुआ है। अच्छा, सब परेशानी है। हाँ, सब परेशानी है। चलिए कुछ और, हाँ कुछ और लोग हैं वहाँ पे चाय की दुकान पे, यहाँ भी बात करते हैं कि भाई सर क्या क्या माहौल है यहाँ का? माहौल तो देखिए रहे हैं, माहौल अच्छा है। अच्छा, कुछ मुद्दा भी है कि कोई मुद्दा नहीं है। क्या फिर क्या यहाँ पे कोई मुद्दा नहीं है। फिर हाँ, कोई मुद्दा यहाँ पे नहीं है। मुद्दा कोई नहीं, तो करना क्या है? करना क्या, वोटिंग करना और क्या करना है। अच्छा, तो वोटिंग तो कर देना है भाई, कुछ नीतियाँ भी होती हैं, नीतियों को लेकर वोटिंग करें। क्या लगता है कि जो सरकार काम कर रही है ठीक काम कर रही है? सरकार ठीक काम कर रही है, बिल्कुल ठीक कर रही है। अच्छा, यहाँ ये तो सबसे हॉट सीट है और सम्राट चौधरी सबसे बड़े नेता हैं बीजेपी के। बीजेपी का भी यहीं जो वोटर है जो है। अच्छा, ऐसा लगता भी है आपको भी कि बीजेपी का ही वो है? जी, बीजेपी का बहुत बड़ा लहर है तारापुर में और सम्राट जी लगभग 50,000 वोट से जीतेंगे। अच्छा, आपको भी यही लगता है? हाँ, बोला तो भाई ने बोला भी किया तो। अच्छा, कोई यहाँ पे अपना मुद्दा नहीं है? नहीं। अच्छा, कोई मुद्दा नहीं है। बीजेपी बस बीजेपी। अच्छा, तो आप भी यही मानते हैं कि? हाँ, यहाँ खाली बीजेपी है ही। अच्छा, हम लोग खाली बीजेपी है। खाली बीजेपी है, बस सिर्फ सम्राट चौधरी सम्राट चौधरी। तो सम्राट चौधरी का ये कुछ लोग थे, इनकी बात हमने सुनवाई। आगे भी चलेंगे और लोगों से बात करेंगे, लेकिन ये जो वहाँ का बंसीपुर चौक जो है वहाँ की ये राय है और आगे भी हम लोगों की बात सुनवाएंगे। हमारे साथ तारापुर में कुछ और लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या रहेगा इस बार का मुद्दा चुनाव का? चुनाव का एक मस्त मुद्दा रहेगा यहाँ पे, ओनली फॉर बीजेपी बस। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि मतलब हम विधायक नहीं सीएम चुन रहे हैं, ऐसी कोई बात है? ऐसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन पर जो है कि सम्राट भैया को यहाँ पर तारापुर विधानसभा में देखते हुए हो सकता है कि बीजेपी वाला मतलब आगे चल के उनको सीएम का पद दे सकता है। हाँ, उम्मीद तो ऐसा लगता है हम लोग को। कुछ उम्मीद है आप लोगों को कि कुछ काम होना चाहिए यहाँ का कोई वो? जब से सम्राट भैया मतलब जो है कि यहाँ का पर्पस जो है कि तारापुर विधानसभा का बहुत उन्नति के साथ मतलब लेके चल रहे हैं। तारापुर विधानसभा का जो है मतलब जो है कि उनको उन्नति के लेके जा रहे हैं और यहाँ बहुत सारा जो कि शिलान्यास भी हुआ है। फिलहाल जो कि काम बहुत शुरू हुआ है। काम अभी शुरू नहीं हुआ, लेकिन मतलब जो कि धरातल पर वो दिखता है, मतलब जो है कि दिखता है, जनता के बीच में जागरण हुआ है, वो जागरूक हो चुका है, लेकिन अभी काम का स्टार्ट अभी और शुरुआत नहीं हुआ है। शुरुआत नहीं हुआ। आपको क्या लगता है कि आप किसके पक्ष में हैं? नहीं, पक्ष तो खैर भाजपा का ही है, सम्राट भैया का ही साथ देंगे, लेकिन जो है जो भी किया है तो अभी काम शुरू नहीं किया है, दिया है बहुत कुछ घोषणा किया है, जैसे ये रोड है, रिंग रोड पास किया है, हाँ, या और भी जितना काम चाहते हैं, काम शुरू नहीं हुआ है। काम शुरू हो जाए। सारा पास हो गया है, शुरू नहीं हुआ है, शुरू हो जाए। अच्छा, शुरू नहीं हुआ है। आपका क्या नाम भाई? राहुल कुमार। अच्छा, राहुल पढ़ते हैं? ना, पढ़ाई छोड़ दिए, तो काम तो हम करते हैं। काम ऐसे मेडिकल लाइन में। अच्छा, मेडिकल लाइन में। तो आपका क्या मुद्दा है, क्या इस बार वोट देने का? ओनली बीजेपी। ओनली बीजेपी, बस। आप बताइए भाई। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपना तारापुर क्षेत्र में यहाँ पे विकास का जो रफ्तार है धीरे धीरे बढ़ रहा है और बढ़ना भी चाहिए। और हमारे जो सम्राट चौधरी हैं, अच्छे नेता हैं यहाँ तारापुर क्षेत्र का। हम ये चाहते हैं इनके जरिया बिहार में हर तरह से अगर विकास हुए और अपना यहाँ का जो युवक को जो बेरोजगार है उसको नौकरी हर चीज यानी कि मिलना चाहिए, मैं ये कहना चाहता हूँ। By all accounts, the battle in Tarapur remains one to watch. Whether the prodigal son of the soil, Samrat Chaudhary, will emerge victorious remains to be seen. For now, this was all we had in this episode of The Road Stop. Bureau Report, News X.